and we have with us Yahya Zaki, who is the head of innovation. This is the team from M3 Tech. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम. So we will wait just a few more minutes for the startups. So far we have all in all 11 participants अभी join कर रहे हैं. Sure. And one more thing, 2-3 I minutes think, Sidra, you are host of this meeting or not? No, I'm not the host. Marjan, can you do me a favor? Please make Sidra as a host so that she can share the screen. ठीक है. Hira, please do so. Make her the co-host. Yeah, I did so. Okay. Done. Everyone can see the screen? Yes, very clearly. Okay. Bakar, I think we should start. Assalamu alaikum everyone. We are right now all in all 15 participants for this session, and I believe other startups would be joining us as well. We have M3 Tech Technologies Pakistan Private Limited already connected to this team for I guess since last 3 months. And I'm sure of those of you who have attended Innovation Matchmaking 2.0, they were also a part of the series, both in Series 1 and Series 2. I'm glad to know that 2 of our startups are already on board with them. And this session is particularly based on the understanding of why we basically need the customer support, which is WhatsApp for Business. And M3 Tech has been kind enough to provide this facility as a trial period for 3 months for all the startups incubated at NIC Karachi and NIC Peshawar. And if you have any questions related to that, which also includes how would you start, what are the prerequisites and the eligibility criteria, and check whether it is relevant enough for your startup. Abhi zarurat hai aapko is cheez ki ya nahi hai, feel free to ask all of your questions. Waqar and Sidra, now I would like to introduce their team. Ye dono is team se hain. And now I would like them to take the stage and start the session, please. Thanks. Yeah, assalamu alaikum. This is Technologies. And
I have Vakar Naseem. He's our VP Sales and Marketing, and our Head of Innovation, Yaya Zaki. So we all three are going to, present this presentation and handle your questions. Okay. So a little brief about what M3 Technologies is. M3 Technologies Pakistan has been in business since 1999 in from Malaysia basically, and we expanded into Pakistan back in 2004. So we're already present in 9 countries around the globe, and so as you can see, Now the number is 11. so now the number is 11. Okay, so M3 Tech Malaysia and AKD Venture Funds joined together to form M3 Tech Pakistan. And as you can see that AKD Venture Funds has 40% share and M3 Tech Malaysia has 60% share in M3 Tech Pakistan. And we also, from M3 Tech Pakistan, there's an extension of M3 Tech Middle East. This is a brief about the countries that the M3 Tech is dealing with. So M3 Tech Pakistan has been the core strength of M3 Tech Pakistan has been SMS gateway connectivity. We have a big banking client list. We have almost 33 banks on our clientele, and that covers mostly all the banks in Pakistan. And so we have been the market leader since the start, since 2004. And because all the major banks were with us since the beginning. Not only are we dominating in the banking industry, we're also dominating in corporate sector as well. So we've worked with the likes of Coca-Cola, we've worked with Unilever, we have Scale Electric, and big companies like this on board with us. So the portfolio is quite huge. These are, so obviously the back end is the telecom operators for all this communication. So we're connected with the telecom operators of Pakistan, not only in Pakistan but also in UAE as well. Okay. So a little bit about what our product. Everyone's getting your voice from now. Yes, sir. Yes. A little bit about our product portfolio. So M3 Tech is, like I mentioned before, we started off with our SMS gateway services, but now over the years we have diverged into many fields, which includes mobile applications, which includes heavily integration with the banking CRMs and their core systems. So we call that product as i3 Root, which basically deals with all integration related to core systems of banks or any corporate client. So we have our own CRM as well. It's an in-house inbuilt CRM, which is working in 3 to 4 organizations as well. If you need any further information, we can share those particular catalogs with you for detailed information. This is just a list of all the things that we're dealing in. Okay. So one of the things that we are dealing with basically it's called Jazz Business Line. It's our in-house inbuilt product. It's a virtual PBX system whereby you can. So what happens is Jazz is basically selling the system to their clients. The backend is totally handled by M3 Tech. So as you can see that we're through this platform, 700 businesses are being supported. So what's happening is that you get a number from Jazz. It's going to be a mobile number, and then you get connected to a virtual PBX. So this is also one of our very star product, if you may say.
So this is our i3 CRM. If so, like I mentioned before, if you need further information related to any of our products, we can have a session of that separately. So I'm just going to skip to the WhatsApp business part that we're going to be discussing today. Okay, so the mechanism is straightforward. You need, as you know, all know that WhatsApp business is being heavily promoted nowadays, and the main criteria is outreach to the customers in the most effective and quick manner possible. So as you know already, SMS has been being heavily used for promotional messages. However, people have this opinion that SMS based messages are not as effective as what WhatsApp messages can be. So reason being, like mentioned in this on the screen as well, that rich media is also available on WhatsApp. You can see if the customer has seen the message. Such type of behaviors are very important for communication with the customers. Okay, so let me skip this and just going to take you to the next slide. So what the first step for business, WhatsApp business is you need to have the, authorization from the customer that you're going to be interacting with them on the WhatsApp platform. To do so, you can send a message on any platform also on WhatsApp and other than WhatsApp. This is necessary in order to save the brand from any miscommunication or for verification purposes. So for example, if you are getting a WhatsApp number which is unknown to you and you don't know at that moment in time that this is a business WhatsApp number, and somebody marks it as a spam. So WhatsApp has their own rules on base. For example, in a day they receive like maybe 10 messages that this number is spam, so WhatsApp can block it. This number, that the quantity of marked as spam messages is not Limited. no, it's not actually. It's up to WhatsApp what they can assign to be called as It's spam. not only about WhatsApp. The user or the customer, they can make their own choices. As we are working with banks in WhatsApp, Yaya can confirm it. If somebody is sending messages regularly, bank can tell us to confirm after 10 messages in a minute or 20 messages, they can select the spam of the span of the time. Actually, We can block it. the rule of thumb is if any messages will be communicated without the user consent, it will be marked as spam at the WhatsApp end. So simple rule of thumb is कि आप कोई भी मैसेज कम्युनिकेट करें वो उससे वो यूजर के एंड से इनिशिएट हो, तो इट मींस कि यूजर का कंसेंट उस मैसेजेस के ऊपर है और आप कम्युनिकेट But कर in रहे हैं. that, in Midan case, if we discuss, in Midan case or other banks, maybe IPL, like they have the choice. If somebody is sending on their number, the spam message like I'm sending this because Midan has the before login chatbot or chat. Exactly. So In that case, yes, they can block it. basically, the bigger the brand, they can then be flexible in that case. Then Yes, we can be flexible in the time span also, and we can be flexible in the choosing of the words. Abusive word cannot be there. They can block the words even in the message. so basically, the gist of this conversation is that you need to have consent from the customers in order to have any conversation with them. So for example, if you're sending broadcast messages, which are called promotional messages, if you are going to send a promotional message every day, every other day, or every day, beforehand, you need to have their acceptance
This acceptance can be on any platform. It can be on SMS or email or any other, maybe it could be a documentation that form that you may have gotten print from your customer, that we will be sending SMS on WhatsApp through this number. That particular number basically becomes your brand identity. And to safeguard that identity, and that number does not get locked at WhatsApp end, for that particular reason, you need to have consent from the users. This is like the most core and the fundamental part of having a WhatsApp business account. Any questions till now? Yeah, hi Sidra. I Yeah. just want to know how we get this consent through our website, through a message, how we do that. Like I mentioned, yes, it can be any channel. It can be any channel like SMS, email, or a document, or your website, or a phone call, whereby if somebody blocks it, if somebody marks your number as spam, and we need to get your number enabled again, we can show your consent from the customer that Okay. this particular number had shown consent. And maybe it was a mistakenly done that they marked it as spam or something else. Sometimes people, just generally tend to mark spam without, checking the details. So in order to avoid I got certain situations, yeah. Great. Sorry, I have a question. Yes. Can I ask now? Okay. So basically, most of the data that we receive from our clients on Facebook, तो उनके नंबर को हम लोग व्हाट्सएप पर के थ्रू सेंड कर सकते हैं. लाइक मोस्ट ऑफ माय पेज जिस पर जितने भी यूजर्स हैं उनको अगर मुझे एड्रेस करना होगा और कंसेंट लेकर, तो क्या फेसबुक और व्हाट्सएप ने मतलब आपस में कोई टूल बनाया है कि उसको हम ट्रैक करके कर सकें? So again, basically consent is something different, and what you're talking about is broadcasting. So if you've already taken consent on your Facebook page that you will be using this number for marketing purposes on WhatsApp, ये एक separate चीज हो जाएगी. And yes, वो जो आप कह रहे हैं कि you have a list of numbers, तो हम आपको अभी थोड़ी देर में by the end of this presentation, we will also show you a dashboard, basically a portal where you can input those numbers and send or communicate with your customers. तो वो मैं आपको दिखा दूंगी अभी थोड़ी देर में. I hope the point is clear. Yeah, Yes. thank you. Okay. So obviously WhatsApp has stringent rules. जैसे अभी हमने जिक्र किया कि सबसे पहले बेसिक यही है consent की चीजें. Similarly, there are certain it's normal in telecom industry as well. You can't use certain words, obscenities and stuff like that. The similar policy is for WhatsApp as well, that you have to be careful. They have keywords which are being monitored at their end, and they can block a number based if you send anything which is unauthorized in their viewpoint. So you need to be very careful of not sending any political sort of messages or obscenities or any sending images which will not be under right category. Okay. It is the process of बेसिकली अगर आपको कोई भी बिजनेस अकाउंट एक्सेस करना होगा, कोई भी आपको रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस अकाउंट की, so you need to pass on all these 5 steps to get the Facebook business account. इनिशियल असेसमेंट के अंदर जो है बेसिकली आप जो है अपना पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप M3 टैग को या व्हाट्सएप को जो है एक अपना बिजनेस केस जो है वो सबमिट करेंगे. आफ्टर दैट बिजनेस केस को सबमिट करने के बाद जो है उनका एक सक्सेस क्राइटेरिया है, उस चीज को वो फॉलो अप करेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस करेंगे और आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 वे API या 2 वे API चैट मॉड्यूल की वो M3 टैग जो है वो प्रोवाइड कर देगा आफ्टर द अप्रूवल ऑफ व्हाट्सएप कंसेंट. Okay, so ये जो question answers का session जो है we will do on the behalf of WhatsApp. On behalf of our clients. Okay.
सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि MOU हमारा और ये भी बिजनेस एंटिटी का एक MOU साइन होगा, एक एग्रीमेंट साइन होगा, जिसके अंदर जो है वो यूज केस जो है उस चीज को डॉक्यूमेंट किया जाएगा। और एक जो है वो एक एग्रीमेंट जो है ना वो M3 Tech का और बिजनेस एंटिटी के दरमियान जो है वो एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि हम ये सर्विसेज जो है ऑन द बिहाफ ऑफ व्हाट्सएप इस बिजनेस एंटिटी को हम दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी हमने स्टार्ट के 2 स्टेप्स देखे वो कंप्लीटली रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। बट अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम आते हैं तो फेसबुक के क्रेडेंशियल्स, बेसिकली आपको कोई भी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट जो प्रोवाइड किया जाता है वो आपके फेसबुक पेज के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। तो इट मींस एनी ब्रांड विच नीड बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, तो सबसे पहले उसका जो है वो एक फेसबुक पेज होगा और वो उस फेसबुक पेज के साथ जो है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट जो है वो बाइंड होगा। तो आपको कोई भी बिजनेस एंटिटी होगी जो जिसको बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट चाहिए होगा, वो अपनी फेसबुक पेज की डिटेल्स जो है वो M3 Tech के साथ शेयर करेगा और वो उसके फॉर्मल अप्रूवल के प्रोसेस के अंदर जाएगा, जिसके अंदर उसकी नेम वेरिफिकेशन और बिजनेस एंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीटली होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सही है। उसके अंदर जो है वो हमने जो बिजनेस केस स्टार्ट के अंदर वेरीफाई किया होगा कि यू आर गोइंग फॉर द चैट एप्लीकेशन, यू आर गोइंग फॉर द बिजनेस इंटीग्रेशन और आप किसी API लेवल के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो वो वाला स्टेप जो है इस मॉड्यूल के अंदर जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। और आफ्टर दैट गो लाइव की एक्टिविटी होगी, ज्वाइंट सेशंस होंगे, उसके अंदर जो है वो QA के क्वालिटी ऑफ सर्विस के कुछ SLA एग्रीमेंट्स वगैरह साइन होंगे, जिसके अंदर अगर किसी भी सर्विस लेवल पे आपको कोई इशू हो रहा होगा तो आपको सर्विस लेवल बताया जाएगा कि आपको किससे कम्युनिकेट करना है और कहां पर आपको एस्केलेट करना है। Any questions in this part? So ये सारे प्रोसेस में आपकी टीम इन्वॉल्व होगी, राइट? Yeah, so this you will not be left alone in this. Obviously हम लोग ही ये सारी चीजें कर रहे होंगे on behalf of our clients. तो इसमें जो भी facilitations, documentations वगैरह की जो भी requirements होगी हम ही गाइड कर रहे होंगे। I see. ठीक है। And let's just say एक दफा सब हो गया, इनिशियल असेसमेंट भी हो गई, 3 महीने भी गुजर गए, उसके बाद आपके सपोर्ट की अवेलेबिलिटी है? 24/7 बिल्कुल। support is available 24/7. We are the authorized reseller here in Pakistan. अच्छा, इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि 4th स्टेप के अंदर आप देख रहे हैं कि 2 तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ऑन प्रेम और SaaS based solution. For the business entity right now we are offering SaaS based software as a service. We encourage SaaS. बिल्कुल, बिकॉज कि अगर आप ऑन प्रेम के ऊपर जाते हैं और स्टार्टअप्स हमारे पास इस वक्त राइट नाउ प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं, तो अगर वो ऑन प्रेम के ऊपर जाते हैं तो इट विल बी हैवी कॉस्टली Because the machine and infrastructure you need to acquire for WhatsApp. सो M3 Tech आपको इसके अंदर फैसिलिटेट करेगा और आपको SaaS बेस्ड सर्विसेज देगा, जिसके अंदर आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत मिनिमल होगी। ठीक है, ठीक है। स्टार्टअप्स एनी क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, Hey, Munawar, can you speak a bit louder? आवाज बहुत कम आ रही है। Can you hear me now? Am I Yeah. loud enough? I hope Yeah, I'm Yes, we are letting Okay. So basically, I run a startup by the name of Kings of Cargo. What we do is we help people import and export here in Pakistan. ठीक है? I have industrial customers. तो मेरे जो कस्टमर्स होते हैं वो मतलब कि नंबर्स में तो कम होते हैं, यूजर्स मेरे कम होते हैं, मगर उनकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उस केस में क्या ये मेरा जो अगर फॉर एग्जाम्पल जो मेरी केस स्टडी आगे जाती है फेसबुक से अप्रूव होने, और स्पेशली क्योंकि मेरी फेसबुक पे इतनी प्रेजेंस नहीं है जो नॉर्मल ई कॉमर्स और उन जैसी कंपनीज की होंगी, क्योंकि मेरा कंप्लीटली जो मेरी अगर प्रेजेंस देखेंगे तो लिंक्डइन में ज्यादा मिलेगी, या मतलब कि वो B2B इंडस्ट्री है तो उसकी थोड़ी सी कंप्लीटली डिफरेंट प्रेजेंस होती है। तो क्या ये मेरी एप्लीकेशन अप्रूव होने के चांसेस इसमें रिड्यूस हो जाते हैं, और क्या वो इतने कम यूजर्स पे मुझे क्या कहते हैं व्हाट्सएप की सर्विसेज मिल सकती हैं, स्पेशली कंसिडरिंग कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो अभी भी मेरे पास मतलब कि वी हैव एन इन हाउस ऐप, बट फ्यू ऑफ माय कस्टमर्स स्पेशली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द पाकिस्तान, दे प्रेफर कि मैं उनको डेली रिपोर्ट व्हाट्सएप पे दूं।
और मेरे पास वो अभी लिमिटेशन मैकेनिज्म जो बना हुआ है वो बहुत लीगल मतलब कि नॉर्मल है, तो इज दैट पॉसिबल और नॉट? Yeah, बिल्कुल possible है. Actually, it does not depend upon the number of customers that you are interacting. It's basically कितने volume of messages आप भेज रहे होंगे ना, इसके ऊपर भी Okay. depend करते हैं. So everything counts, but obviously अगर आपका volume बढ़ा है एक तरफ और आपके maybe number of वो customers कम है, तो वो फिर देखा जा सकता है. मतलब नहीं, व्हाट्सएप की तरफ से कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है. ऐसी लिमिटेशन कहीं से भी नहीं है. ठीक है. अच्छा, अच्छा, just जो to follow. आपने यस नहीं, you continue, sorry. नो इशू. जस्ट टॉकिंग अबाउट जैसा आप कह रहे हैं कि आपकी फेसबुक की प्रेजेंस जो है ना बहुत लिमिटेड है, ये ना होने के बराबर है. तो इट्स नॉट रिलेटेड टू द फेसबुक प्रेजेंस, इट्स एक्चुअली द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, जिसके अंदर जो है किसी फेसबुक के साथ, फेसबुक के पेज के साथ जो है ना वो इंटीग्रेशन पॉसिबल होती है. जो बेसिकली उसका इनिशिएशन स्टेप है वो फेसबुक पेज के साथ इनिशिएट होता है. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पेज के ऊपर इतने लाइक्स या इतने कस्टमर्स होंगे तो आप ये बिजनेस प्रोसेस के अंदर जा सकते हो. यू कैन क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज एंड आप डायरेक्टली उसके साथ इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं. ऐसी कोई लिमिटेशन राइट नाउ नहीं है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है रिगार्डिंग द बिजनेस इंडस्ट्रीज. वो जो है सदरा आपको आगे जाके कम्युनिकेट कर देंगी स्लाइड्स के अंदर. अच्छा, one more thing. देखिए, अगर ये क्वेश्चन आंसर सेशन है तो ही आई विल आस्क द क्वेश्चन, वरना फिर मैं एंड में अपना आई थिंक मेरा ख्याल से ज्यादा बेहतर है कि इंटरेक्टिव रहेगा. तो ज्यादा बेहतर है कि बाय द वे हम के पूरी एक क्लास के अंदर वो करते हैं और यू गाइस माइट मिस योर क्वेश्चंस. सो बेहतर ये है कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं और जो है आप बीच के अंदर भी क्वेश्चंस कर सकते हैं. अच्छा, तो फिर जस्ट वन फॉलो अप क्वेश्चन. आउटबाउंड जो मैसेजेस हैं उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आउटबाउंड मैसेजेस आपके नहीं हो सकते, या व्हाट्सएप पे, या अगर हो सकते हैं तो स्केड्यूल नहीं हो सकते? कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है? अच्छा देखिए, इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताऊं. सिद्रा ने जैसे आपको कम्युनिकेट किया कि यूजर का कंसेंट जरूरी है. देखिए, व्हाट्सएप दोनों तरह की सर्विसेज देता है, इनबाउंड की भी आउटबाउंड की भी. दे से कि अगर आप इनबाउंड मैसेज कर रहे हैं, यानी कस्टमर कोई मैसेज इनिशिएट करता है, तो इट मींस आप 24 आवर्स तक उससे फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके. ठीक है. उसके अंदर इमेजेस भी हो सकते हैं, उसके अंदर वीडियोस भी हो सकती हैं, उसके अंदर पीडीएफ फाइल्स भी हो सकती हैं. जो चीजें आप कम्युनिकेट व्हाट्सएप, नॉर्मल व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं. लेकिन रूल ऑफ थंब ये है कि कस्टमर ने इनिशिएट किया हो मैसेज, फर्स्ट मैसेज. ओके. वरना ऐसा हो सकता है कि हम रोज अगर भी जैसे फॉर एग्जांपल डेली सीक्वेंस जा रहे होते हैं. बिल्कुल. अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर. जैसे आपने कहा कि आउटबाउंड कॉल, इट मींस बिजनेस भी इनिशिएट कर सकता है. अच्छा. बट बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि इट वुड बी ऑलवेज बी अ टेम्पलेट अप्रूव मैसेज. यानी आपको कोई भी मैसेज अगर कस्टमर को करना है बिजनेस ने, और तो वो पहले व्हाट्सएप से उस टेम्पलेट मैसेज की अप्रूवल लेनी होती है, और वो टेम्पलेट मैसेज जो है वो चार्ज मैसेज होता है. अच्छा, वो चार्ज मैसेज होगा. एक सेकंड ये कि मार्केटिंग मैसेजेस नहीं हो सकते, व्हाट्सएप नहीं अलाउ करता. ठीक है, वो अंडरस्टैंडेबल. वो मार्केटिंग मैसेज है भी नहीं, वो स्टेटस होते. नहीं, फॉर क्लैरिटी ऑफ अदर्स एज हाँ. वेल कि मार्केटिंग से मैसेजेस की भी क्लैरिटी आपको दे दी जाए कि अगर तो किसी कस्टमर ने कोई क्वेरी की हुई है उसके अगेंस्ट आप मैसेजेस भेज सकते हैं. उसका आपका टेम्पलेट अप्रूव होगा. अब आप ये तरह के जितने भी मैसेजेस आपके जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि आई थिंक आप कार्गो से रिलेटेड आपने मुझे बिजनेस बताया था. तो कार्गो के अंदर जो है बेसिकली जो है कस्टमर को जो है कम्युनिकेट किया जाता है कि आपका जो पार्सल है या आपका जो शिपमेंट है वो करंट स्टेटस उसका ये है, वो क्लियरिंग के अंदर आ गई है. एग्जैक्टली. तो मतलब ये आपके प्री डिफाइंड मैसेजेस होंगे. आई थिंक 7 to 8 आपके टेम्पलेट मैसेजेस होंगे. एग्जैक्टली. बिल्कुल टेम्पलेट मैसेजेस का प्री अप्रूवल लेके और फिर आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है. लेकिन इट ऑलवेज बी अ चार्ज मैसेज. अगर बिजनेस कोई मैसेज कर रहा है सेपरेटली 24 आवर्स के अलावा, तो वो चार्ज मैसेज होगा. इनबाउंड और आउटबाउंड both are charged messages by M3Tech. Got it. इनबाउंड पर सेशन दोनों चार्ज हैं. The difference between the charging is only कि आउटबाउंड मैसेजेस में एक चार्जेस व्हाट्सएप के एज पर एक्चुअल प्लस द सर्विस चार्जेस ऑफ M3Tech होंगे, और जो आपका इनबाउंड है जिसमें कस्टमर इनिशिएट कर रहा है उसमें सिर्फ M3Tech अपने सर्विस चार्जेस लेगा, आपको व्हाट्सएप के चार्जेस नहीं पड़ेंगे.
ठीक है, आई थिंक बिजनेस मॉडल जो है वो लेटर ऑन सिद्रा जो है वो डिटेल के अंदर भी कम्युनिकेट कर देंगी, तो राइट नाउ उसको कंफ्यूज ना करें कि बिजनेस मॉडल क्या है, लेकिन अभी एट द एंड जो है सिद्रा आपको दोबारा रिपीट कर देंगी, उसके अंदर फिर हम मजीद क्वेश्चन आप लोगों के होंगे तो वी कैन एंटरटेन एज वेल। ठीक है, राइट नाउ हम आगे मूव करें, आप लोगों को क्वेश्चन है तो बताइए। So, इसी से रिलेटेड है, I'd like to add, I think Yeah. साथ साथ पूछते जाएं सवाल तो ज्यादा बेहतर होगा, जैसे बिल्कुल, जैसे आप बिल्कुल स्लाइड आगे कर रहे हैं, हर स्लाइड के डिफरेंट सवाल जहन में आ रहे हैं। So I would like to add कि जैसे अभी मुनव्वर ने कहा है कि they want to send messages with regard to transactions कार्गो के लिए। This brings me the question कि ये तो आप कर रहे हैं कि एक कस्टमर जब वहां से मैसेज करता है तो आपकी तरफ से जो सेट ऑफ ऑटोमेटेड मैसेजेस होते हैं जो आपको बिजनेस देगा और आपसे कहेगा कि मेरे हर कस्टमर को ये मैसेजेस मिल जाने चाहिए, दैट्स फाइन, यहाँ तक तो बात समझ आ गई, दैट्स वो तो हो जाएगा। लेकिन लेट्स जस्ट से कि मुझे एक कस्टमर को कस्टमाइज्ड मैसेज भेजना है और दूसरे को उससे डिफरेंट कस्टमाइज्ड मैसेज भेजना है, तो हाउ वुड दैट बी, इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल तो है, लेकिन अगेन हम ये बात ये कर रहे हैं कि कस्टमाइज जो मैसेज है वो इनिशिएटेड बाय कस्टमर फर्स्ट। दैट इज फाइन, इनिशिएटेड बाय कस्टमर इज फाइन, इनिशिएट उनकी तरफ से हो जाए, लेकिन मेरा एक कस्टमर जो है उसको जो मुझे मैसेजेस भेजने हैं दैट हैज टू बी डिफरेंट देन द सेकंड कस्टमर। देखिए इसमें मेन पॉइंट है कि यू व्हाटएवर दैट मैसेज एक कस्टमर को जा रहा है और दूसरे कस्टमर को भी जा रहा है, जितने भी है 10 कस्टमर्स को 10 डिफरेंट मैसेजेस जा रहे हैं, ऑल 10 शुड बी गिवन टू व्हाट्सएप फॉर वेरिफिकेशन फर्स्ट। आपको अप्रूवल चाहिए उस मैसेज, वो टेम्पलेट मैसेज उसके अंदर अगर आपका ये कहना है कि उसके अंदर कोई कंप्लेन नंबर होता है या शिपमेंट का नंबर होता है या उसके अंदर नाम वो डिफरेंट होता है ना, वो डिफरेंट होता है। इट्स फाइन अगर वो नंबर डिफरेंट है तो हमें एक अप्रूवल टेम्पलेट का अप्रूवल लेना होगा और उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो इट कैन बी रिप्लेस विद अदर वैल्यूज। अच्छा कह रही हैं, देखें इसमें दो अलग अलग बात हो रही है। जो याया कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने अगर शिपमेंट की इंटीमेशन देनी है सिद्रा को या याया को तो उसमें नंबर चेंज होगा, ये तो एक ही मैसेज है, ठीक है, एक ही टेम्पलेट है ये, ठीक है, तो इसमें नंबर चेंज होगा, इससे कोई मसला नहीं है, टेम्पलेट अप्रूव है, नंबर डिफर कर सकता है। लेकिन मिसाल के तौर पे आपने शिपमेंट की देनी है एक इंफॉर्मेशन आपने रिसीविंग की देनी है कि ये हमें आपका ये कार्गो जो है रिसीव हो चुका है, अब हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे, तो ये दूसरा मैसेज है, ये टेम्पलेट दूसरा है। इस तरह के आपके ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी कस्टमर से, मेरा नहीं ख्याल है कि कार्गो की किसी में 8-10 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि यहाँ पे लॉजिस्टिक्स के बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनकी बहुत ट्रांजैक्शंस होती हैं, ई कॉमर्स के हैं, ऑफ एंड ऑन बहुत सारे ऐसे हैं जो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस और फ्लो ऑफ मैसेजेस की आप बात करें, अगर एक कस्टमाइज्ड हो, इसमें ज्यादा क्लैरिटी हो, तो I think startups would be interested. Please carry on. Yes, Marjan, I just wanted to add here. Hello. Okay. Please. Sidra, my startup is altogether different from what Munawwar is doing. वो कार्गो में मेरा बहुत ही e-commerce related. We are a delivery service. ठीक है, लादो के नाम से हम काम कर रहे हैं. We deliver everything. Pick and delivery भी हो रहा होता है, grocery deliveries भी हैं, medicine भी हैं. एंड डिफरेंट कंपनीज के साथ भी काम कर रहे होते हैं, B2B में भी हैं, B2C में भी हैं। अब हमारे जो मैसेजेस का फ्लो होता है वो ऑलटुगेदर डिफरेंट होता है। यानी कि अगर सिर्फ स्ट्रेट कोई 5-6 टेम्पलेट भी बनाता हूँ तो उसमें भी मेरे अगर लेट्स सपोज एक दिन के अंदर 20-30 डिलीवरीज मूव हो रही हैं तो हर एक का स्टेटस डिफरेंट है, हर एक की ऑर्डर की नेचर डिफरेंट है, तो उसको मैं कैसे इसके अंदर ग्रैब करूंगा? अब इसमें देखें, ऑर्डर की नेचर डिफरेंट होना और ऑर्डर का नंबर, उसकी क्यूरी डिफरेंट होना, ये डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट है 10, मैं इसको शायद आप क्लियर कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आपकी प्रोडक्ट है 10, सिद्रा ने ए प्रोडक्ट ली है, मैंने बी ली है, या सी ली है, तो आप अगर सिद्रा क्यूरी कर रही होंगी अपनी प्रोडक्ट के स्टेटस के हवाले से, तो आप उनको प्रोडक्ट ए बता रहे होंगे और मुझे प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। Am I correct or wrong? This is what you are saying is related to understanding of product or marketing related. मेरा तो एक देखे ना, जैसे हमारा फूड पांडा की तरह है, तो हमें अपडेट्स भेजने होते हैं,
कि जैसे मेरा एक ऑर्डर प्रोसेस होता है तो मुझे ये व्हाट्सएप पे अभी हम जो मैसेज कर रहे होते हैं कि जी आपका ऑर्डर शुरू हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, इट्स इन जी। प्रोसेस। सेकंड जी, राइडर सही है। पिक करता है तो फिर हम उन्हें देते हैं कि जी आपका ये पिक हो चुका है और अब ये राइडर डिलीवर की स्टेज पे जा तो रहा है। दो टेम्पलेट हो डिलीवर गई, होता है तो हम वो स्टेटस शो करते हैं। 3 टेम्पलेट हो गई, तो ये 3 टेम्पलेट है। नहीं, ऐसे तकरीबन 5 से 6 मिनिमम होंगे, डिफरेंट स्टेटसेस होते हैं हाँ, तो जो ये कि हमें इस 6 पे जो रखते भी हैं। टाइप ऑफ आपकी इंटीमेशंस है ना, तो वो 6 अलग टेम्पलेट होंगे। वही मैं पहले भी मैंने ये अर्ज की कि किसी भी बिजनेस में जो टेम्पलेट मैसेजेस हैं वो 8 to 10 से ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, सही है, तो बिल्कुल ठीक है। वो कवर होंगे, वो कवर होंगे ऑब्वियसली। वो आपको बेसिकली बताने पड़ेंगे। मतलब जैसे इसको मिसाल ले लेते हैं फूड पांडा की। फूड पांडा का ऑर्डर प्लेसमेंट का एक कंफर्मेशन आता है, फिर राइट, दूसरा आता है कि जी ऑर्डर प्रिपेयर होना शुरू हो गया है, ट्रू, फिर तीसरा आता है कि जी लेस देन 5 मिनट्स में हम डिलीवर कर देंगे उस राइडर को। ठीक है। चौथा आता है कि ड्राइवर राइडर इज ऑन द वे। और मैक्सिमम पांचवा आता है कि जी राइडर इज एट योर प्लेस। ठीक तो है, ये आई पूरे गॉट योर साइकिल पॉइंट। में 5 टेम्पलेट मैसेजेस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अच्छा ये टेम्पलेट का जो कंटेंट होगा वो चेंजेबल है, वो कुछ भी वो हर चेंजेबल है, बिल्कुल 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 चेंजेबल है, Variable. बट इट हैज टू बी अप्रूव्ड एंड इट विल बी चार्ज सेपरेटली। मतलब उसके जो वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, जिसका ऑर्डर नंबर चेंज हो रहा है हर वो उसमें, मसला नहीं है। वो मसला नहीं है, लेकिन टेक्स्ट जो बाकी का है वो आपको अप्रूव करवाना है। देखें, आप मुझे इंटीमेट कर रहे हैं कि जी आपका ऑर्डर हमें मिल गया है, तो वो ऑर्डर में आप उसकी अगर डिटेल दे रहे हैं कि जी 2 नान है और 1 टिक्का है, ठीक वो है, आइटम आप हर टेम्पलेट मैसेज में चेंज कर रहे हैं, दैट इज ओके, ठीक है, दैट इज ओके। लेकिन अगला मैसेज जो आप कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपकी फूड जो है वो प्रिपेयर होना शुरू हो गई है, तो दिस मैसेज हैज नथिंग टू डू विद द लास्ट वन। ट्रू, ये सेकंड मैसेज जो है ये सेकंड टेम्पलेट के तौर पे ही ओके, काउंट होगा। ठीक है। अच्छा ये सारे टेम्पलेट्स जो होंगे और इस पे अगर हमारी तरफ से होता है ये 2 जो भी होगा वो चार्जेबल होगा। यस, चार्जेबल, दोनों चार्ज हैं। असल में सिनेरियो ये है, द आउटबाउंड जब कस्टमर मतलब आप एज ए एंटिटी जब आप अपने क्लाइंट को मैसेज करेंगे, वो सेशन की ड्यूरेशन उसकी भी 24 आवर्स ही होगी, बट उस पे चार्जिंग M3 टेक की सपोर्ट की भी होगी, प्लस जो एक डिफाइंड अवेलेबल टैरिफ है व्हाट्सएप फेसबुक का, वो भी अप्लाई होगा उस पे। And बट if I may ask, what are the charges? SMS? we can share the link वैसे 0.253 सेंट प्लस शेयर कर देना लास्ट में। 0.253 is the WhatsApp charges I am telling you, and उस पे कुछ हमारे 0.00 समथिंग जो है वो सेंट जो है वो हमारे शेयर वो अपने हमारे सर्विस चार्जेस। Okay, please continue. Thanks. जी, अच्छा, अलाउड नंबर में अच्छा, आप देख रहे हैं कि अलाउड नंबर मैपिंग कौन कौन से नंबर्स हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर जो है वो मैप हो सकते हैं। यूएन नंबर है, अगर आपने बिजनेस जायज का वो बिजनेस लाइन आप यूज कर रहे हैं तो वो नंबर भी हो सकता है यूपी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यूएन नंबर एंड द लॉन्ग मोबाइल नंबर जो है वो दोनों के दोनों जो है वो इनेबल हो सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर। Any number that cannot receive an international or SMS is not possible. Short code local toll free numbers. ये दोनों नंबर के नहीं, ऐसे कोई भी नंबर जो स्टार्टिंग लोकल टोल फ्री मीन 0800 नंबर नहीं हो सकती है, वो जो है व्हाट्सएप बिजनेस के लिए वायबल नहीं। शॉर्ट कोड पे अलाउड। अच्छा, सो अब थोड़ा सा इसके आपको ये बता देते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ये कहाँ का अवेलेबल है। हम लोग M3 टेक जो है वी प्रोवाइड 360 डिग्री सोल्यूशन। हम लोग ना सिर्फ आपको ये व्हाट्सएप की बेसिकली हम लोग ये कह रहे हैं कि जी आपको इफ यू वांट टू कनेक्ट योर व्हाट्सएप टू योर वेबसाइट, आपकी फेसबुक का अकाउंट या आपका व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल एप्लीकेशन के साथ
तो हम लोग आपको जो पोर्टल देंगे उसके अंदर ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स विल बी कनेक्टेड और उसको आप एक ही जगह से उसको चला सकते हैं। तो आपको फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कस्टमर ने फेसबुक के थ्रू आपको रीच आउट किया है तो आप जो है वो उसकी भी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। अच्छा, ये सारे यूज केसेस हाँ, ये दीज आर जस्ट द यूज केसेस जो हम लोगों ने दिए हुए हैं कि टेलीकॉम सेक्टर, बैंकिंग में। क्योंकि वो एक स्टार्टअप अगर सारे बैठे हैं तो मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगा जो शायद डिस्कशन में शुरू में हुई भी होगी यकीन, कि हमारे M3 Tech, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट M3 Tech, तो हमारे बाकी लोगों से कॉम्पिटिटर्स अगर आप कहें तो अभी व्हाट्सएप में कोई कॉम्पिटिटर एज सच है नहीं, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटर मानता हूँ कि मैं और मेरा कॉम्पिटिटर दोनों एक ही चीज बेच रहे हैं, बराबर से बेच रहे हैं, तो मेरा कॉम्पिटिटर है। ठीक है, तो अभी लाइव प्रोडक्ट्स में हमारी अभी लाइव है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर आप बैंकिंग की बात कर रहे हैं, जिस तरह सिद्रा ने आपसे कहा डोमिनेशन, तो उसकी स्ट्रेंथ बता देता हूं मैं आपको कि हम कितना डोमिनेट करते हैं, कि हम 32 बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करते हैं, और जो हमारा सेकंड कॉम्पिटिटर अगर कोई होगा तो वो शायद 2 बैंक्स के साथ काम कर रहा होगा, उसमें भी एक में प्राइमरी एक में सेकेंडरी। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ M3 Tech। करंट स्टैंडिंग हमारी जो मार्केट में है वो ये है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि व्हाट्सएप फॉर बिजनेस के लिए हम सबसे नए रीसेलर हैं पाकिस्तान में। ये वैसे बोलना ही चाहिए लेकिन मैं आपको स्ट्रेट बता रहा हूँ कि हम सबसे नए रीसेलर हैं पाकिस्तान में, और अनफॉर्चुनेट ये है बाकी लोगों के लिए कि जी हम पहले वेंडर हैं जिनके सॉल्यूशंस लाइव हैं। रीसेलर, अप्रूव रीसेलर 2-2 साल पुराने भी लोग हो सकते हैं, लेकिन जो कस्टमर को बेच पाए सॉल्यूशन और वो कस्टमर के पास सक्सेसफुली चल रहा है, वो सिर्फ M3 Tech है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, Yes, we can hear you. ओके। तो ये एक सिनेरियो है। तो स्टार्टअप में इंटरेस्ट इसलिए है हमारा कि स्टार्टअप आज का आपको पता है दौर इतना है, तो वो ई कॉमर्स पे और डिफरेंट चैनल्स को वो एड ऑन करना जो है वो जरूरत बन गई है। ठीक है, एंड वी आर द ओनली कंपनी जो जिनके सॉल्यूशंस लाइव हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमारे पैरामीटर्स जो सिक्योरिटी के और दूसरे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कोई भी कंपनी मतलब लाइक ISO 27000 we are certified, and at this point of time I can say that M3 Tech is the only company जो ISO 27000 जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन है वो सर्टिफाइड है। वी आर द ओनली कंपनी इन SMS एग्रीगेशन और टेक्नोलॉजी साइड। आई थिंक एक चीज यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगा मैं, जो आई थिंक कल स्लाइड के अंदर शायद आई थिंक मिसअप हो गई है। हम ये देख लेते हैं कि यूज केसेस जो है ना हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास व्हाट्सएप के यूज केसेस बनते हैं जो भी किसी भी स्टार्टअप को या किसी भी बिजनेस को फैसिलिटेट करेंगे। सही है। सबसे पहला यूज केस जो है वो कॉन्टैक्ट सेंटर सपोर्ट का है। ठीक है, आप बिजनेस एंटिटी है और आप अपने कस्टमर को कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहते हैं या कोई इनको इंक्वायरी का कोई आंसर करना चाहते हैं, तो आप लाइव चैट सर्विसेज व्हाट्सएप के ऊपर दे सकते हैं। एज सच स्टार्टअप्स हो सकता है माइट भी किसी के जहन में क्वेश्चन आए कि व्हाट्सएप वेब भी तो इसी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, या व्हाट्सएप बिजनेस भी जो है जो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए होती है वो भी इसी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। लेकिन आप देखें कि व्हाट्सएप बिजनेस एक मोबाइल नंबर के ऊपर जो है ना वो कॉन्फ़िगर होगा, और राइट नाउ आप एक ही नंबर जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है, एक ही यूजर जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है बिजनेस से या कस्टमर से। ठीक है, जबकि हम आपको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली विच वी कॉल्ड देम एज अ हेल्प डेस्क सॉल्यूशन। तो हेल्प डेस्क सॉल्यूशन के ऊपर आपके मल्टीपल एजेंट्स हो सकते हैं जो एक ही नंबर के थ्रू जो है वो कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको इसका एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन है हम आपको इसका डेमो भी शो कर देंगे, जिसके अंदर जो है आपके डिफरेंट एजेंट जो है वो लॉग इन होके एक ही कस्टमर के साथ जो है डिफरेंट कस्टमर के साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड यूज केस आता है व्हाट्सएप बिजनेस का, द बॉट सर्विसेज। आपने कुछ अभी कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा
कि जैज भी कुछ इस तरह की सर्विसेज जो है ना वो दे रहा है, जिसके ऊपर आपको अपना टैक्स सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है, या फिर आपको जो है बैलेंस इंक्वायरी करनी है, या आपको अपने ट्रांजेक्शन से रिलेटेड या शिपमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस तरह का एक बोर्ड भी डिजाइन कर सकते हैं कि कस्टमर फॉर एग्जांपल हाई लिख के आपके बिजनेस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करता है, तो आप उसको एक मेन्यू थ्रो कर दें कि 1 फॉर शिपमेंट, 2 फॉर कंप्लेन, 3 फॉर इंक्वायरी एंड 4 फॉर द कस्टमर सर्विस। तो आप ये बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर है जैसा कि आप किसी कॉन्टैक्ट सेंटर के ऊपर आप कॉल करते हैं, तो वहां पर एक IVR का मेन्यू चलता है और उसके अंदर लास्ट के ऊपर लाइव चैट या लाइव कस्टमर सर्विस होती है। तो हम उसी मॉडल को रेप्लिकेट कर रहे हैं ऑन अ व्हाट्सएप। सही है। दूसरा यूज केस तो ये हो गया। तीसरा यूज केस ये है कि आपको अपने सिस्टम के साथ कोई लाइव इंटीग्रेशन करनी है, तो यू नीड एन व्हाट्सएप बिजनेस API जिसके ऊपर आप अपने सिस्टम के साथ उसको इंटीग्रेट कर सके। तो वो वाला यूज केस भी हमारे लिए पॉसिबल है। अगर आप हमारे साथ कोई काम करते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो इट मीन्स हम साइमल्टेनियसली 3 यूज केसेस देख रहे हैं। एक तो कॉन्टैक्ट सेंटर सपोर्ट है, दूसरा बॉट सर्विसेज है, और थर्ड वन इंटीग्रेशन सर्विसेज है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इसके अंदर? तो फिर हम अगर आई थिंक मेरे ख्याल से हम डेमो की तरफ ज्यादा चले जाएंगे, तो इस वक्त इट माइट बी वेरी मच क्लियर। आई थिंक वी कैन हैव अ डेमो, फिर आप उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। या आई गेस डेमो इज मच बेटर, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो डेमो को भी इंटरेक्टिव रखें। ठीक है। यस ब्राउजर खोलो। अच्छा, ये अभी यहाँ है आपने सिस्टम से कनेक्ट करके, ये आप लोगों से शेयर करते हैं स्क्रीन, तो प्लीज जरा वेट कीजिएगा। ओके दैट्स फाइन। हेलो So probably one of you have to mute their speakers, फिर echo नहीं होगा। हेलो हेलो मंजा, आप लोग को आवाज आ रही है? Yes. अच्छा, आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर नजर आ रहा है, 2 नंबर नजर आ रहे हैं। पहले तो आप हेल्प डेस्क वाला नंबर मोबाइल के अंदर सेव कर। Yeah, your voice is way too loud. ओके,
ठीक है, can you speak again? हेलो। Yeah, it's fairly better. पहले बहुत ज़्यादा ऊंची थी. अच्छा अच्छा। Just save out this number in your mobile number to all the participants. और So इस what is नंबर this? जी, इस नंबर के ऊपर आप अपने मोबाइल में सेव करें और एक मैसेज करें व्हाट्सएप के ऊपर। दोनों में से किसी एक नंबर पे पहला नंबर फर्स्ट वन कंफ्यूजिंग आफ्टर अच्छा, इसको प्रेजेंट करने के लिए मैं भी अपना व्हाट्सएप के ऊपर ही आप लोगों को ये चीज दिखा देता हूँ कि मेरे पास मेरा अपना व्हाट्सएप वेब जो है बेसिकली खुला हुआ है और ये वही वाला नंबर है जो मैंने आप लोगों को सेव कराया है +923323064567। आप देख रहे होंगे कि आप लोगों ने जब ये नंबर सेव किया होगा और व्हाट्सएप पे आपने खोला होगा तो आपको इसके साथ नाम नजर आ रहा होगा M3 टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान एंड द ग्रीन बैज अलॉन्ग विद इट। तो ये ग्रीन बैज जो है बेसिकली जो है वो बताता है कि ये ऑफिशियल बिजनेस अकाउंट है M3 टेक का। ठीक है, ये बेसिकली अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप बिजनेस के लिए तो उसके अंदर वो ग्रीन बैज आपको नहीं आता है, लेकिन आप ऑफिशियल एपीआईज अगर व्हाट्सएप बिजनेस की यूज करते हैं तो आपको ये ग्रीन बैज एड ऑन मिलता है जो ये इस बात को प्रूव है कि आप ऑफिशियल सर्विसेज जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, हसन ने आई थिंक हमारे पास मैसेज ड्रॉप किया है अभी। आप जिन जिन लोगों ने अपने पास मोबाइल में सेव किया होगा नंबर उनको कुछ ऑटोमेट हाई मैसेज सेंड करने के बाद जो है ऑटोमेटेड मैसेजेस भी मिले होंगे। तो बेसिकली ये जो हम यूज केस अभी देख रहे हैं ऐसा डेमो, ये कॉन्टेक्ट सेंटर का डेमो कॉन्टेक्ट सेंटर की सर्विसेज के लिए है कि व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है तो एजेंट जो है उसको लाइव चैट सर्विसेज के अंदर जो है इंफॉर्मेशन जो है ना वो कम्युनिकेट की जा रही है उसको। सैयद असफर हुसैन ने हमें मैसेज किया है। आप लोगों की स्पीड चेक कर, अच्छी है। अच्छा चले, हाउ मे आई हेल्प यू? चले, गुड, ठीक है। हाँ यस, अच्छा इसके अंदर मैं कुछ चीजें आप लोगों को गाइड कर दूं कि आप सिस्टम में देख रहे हैं कि उसने नाम जो है वो ऑटोमेटिकली पिक किया है। बेसिकली नाम जो है ना वो बेसिकली आपकी जो व्हाट्सएप की प्रोफाइल है आपने उसके अंदर जो भी नाम आपने मेंशन किया होगा वो नाम जो है वो सिस्टम के अंदर जो है वो रिसीव हो जाता है। सही है, लेकिन इसके अंदर इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है जिस बंदे के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इसका ऑफिशियल मतलब फॉर्मल नेम हो। इट माइट बी कि वो कुछ लोग जो है वो डॉट रख लेते हैं, कुछ इमोजीज लगा देते हैं या कोई डिफरेंट तरह के जो है वो रोबोटिक नेम वगैरह भी हैं, वो भी लोग जो है वो उसको रख देते हैं। ठीक है, अच्छा हसन ताहिर भी यहाँ पर है। अगर इस सिस्टम को देखा जाए तो इस सिस्टम के अंदर जो है इस वक्त मल्टीपल अभी तो राइट नाउ मैं खुद ही लॉग इन हुआ हूँ, एक ही एजेंट इस सिस्टम के अंदर लॉग इन हुआ है, लेकिन अगर कोई बिजनेस एंटिटी है और वो चाह रही है कि मेरी कस्टमर को जो है ना फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन करनी है और उस कम्युनिकेशन के लिए ऑब्वियसली वन मैन जो है ना वो पॉसिबल नहीं है कि वो तमाम कस्टमर्स को हैंडल कर सके, तो इट्स मच बेटर कि हम जो है वो डिफरेंट यूजर्स बना सकते हैं इस सिस्टम के अंदर और डिफरेंट यूजर जो है वो बिजनेस के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर यूजर्स जो हैं अनलिमिटेड यूजर्स बनाए जा सकते हैं। दो तरह के रोल हो सकते हैं, एडमिन का रोल हो सकता है या एजेंट का रोल हो सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर सॉरी
सॉरी टू इंटरप्ट यू, सिर्फ इसी मुझे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए यहाँ पे कि कम्युनिकेशन का फ्लो आपका क्या होगा, बिकॉज एक नेचुरल व्हाट्सएप पे तो अगर मैसेजेस आ रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पर क्लाइंट या पर इंडिविजुअल आ रहे होते हैं, तो इसमें कैसे होगा, यानी कि एजेंट किस तरीके से हैंडल कर रहे होंगे, या हमें एजेंट को ये बताना पड़ेगा कि अच्छा ये क्लाइंट्स आप हैंडल कर रहे हो, हाउ वी डिवाइड? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। देखिए मैं आपको ये बताऊं, देखिए अगर मल्टीपल एजेंट एक साथ लॉगिन हुए हैं तो इनका इंटरफेस तो यही वाला होगा कंप्लीटली, जो भी आपको राइट नाउ स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन होता यह है कि जब एक एजेंट किसी कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है तो वो दूसरे एजेंट के लिए वो कस्टमर जो है बेसिकली लॉक हो जाता है। इट मींस वो दूसरा एजेंट जो है यानी एजेंट बी जो है वो हसन ताहिर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि एजेंट ए ने जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी है। दैट्स व्हाई आप देखें कि आपको जैसे ही मैंने क्लिक किया था तो आपको एक मैसेज आ गया था कि माय नेम इज शजी, हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, तो बेसिकली मैं शजी एक एजेंट है और उसके साथ जो है हसन ताहिर जो है ना वो बाइंड हो गया है, तो दूसरा कोई भी एजेंट जो है ना वो इस कस्टमर के साथ जो है वो बात नहीं कर सकता। ओके, ठीक है, सही है, क्लियर। बिल्कुल ये वही वाला प्रोसेस है जो कॉन्टेक्ट सेंटर के अंदर होता है कि अगर एक कॉल जो है किसी एजेंट के पास राउट हो जाती है, कोई दूसरा कोई एजेंट जो है वो उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। गुड, ठीक है, ठीक है। और इसके साथ जो है इसके अंदर डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर वो आपको बता रहे हैं कि टोटल थ्रेड्स कितने हैं, टुडे आज की कितनी कम्युनिकेशन हुई है, एक्टिव थ्रेड इस वक्त 2 है, एक असफर का है और एक हसन का है। क्यू के अंदर अभी कोई भी कस्टमर नहीं है, एक्टिव एजेंट्स असल में बेसिकली मैं जो हूँ एडमिन की आईडी से लॉगिन हूँ, इसलिए यहाँ पर एक्टिव एजेंट जो है ना 0 नजर आ रहा। अगर मैं एजेंट की आईडी से लॉगिन होता तो यहाँ पर जो है एजेंट 1 नजर आ रहा होता। एवरेज टाइम पर एजेंट थ्रेड कितना है, तो ये बेसिकली केपीआईज हैं, उन केपीआईज के बेस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ एजेंट बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो डेटा है ये सारा सेव भी हो रहा होता है ऑटोमेटिकली, आपका बिल्कुल, बैकअप बन रहा होता है? आप अगर चैट्स के अंदर जाते हैं तो ये सारा का सारा डाटा इनबिल्ट इन सिस्टम है, और बाद में अगर आप इस डाटा के ऊपर कोई एनालिटिक्स रन करना चाहते हैं तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप उन डाटा को जो है ना एनालाइज कर सकें और चीजों को देख सकें कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, ये देखें आप सैयद असफर हुसैन, इनकी डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूं तो ये हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शजी, हाउ आर यू, हमने इनिशियल मैसेजेस किए थे तो वही मैसेजेस जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो सिस्टम के अंदर जो है कंप्लीटली लॉग्स जो है ना वो मेंटेन हो रही होती है तमाम कम्युनिकेशन की, तो आपके पास वो कंप्लीट डिटेल्स ऑब्वियसली मौजूद होती हैं और उसी के बेस के ऊपर आप कुछ बिजनेस डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस गाइस, आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो बताएं। And an interesting question for future. Any idea about WhatsApp for payments? यस, व्हाट्सएप इस पे वर्किंग कर रहा है, क्योंकि हमारी मतलब एज ए रीसेलर ग्लोबली दुनिया की जो है वो कंसर्न है व्हाट्सएप के साथ के जी इसको सिर्फ एज ए चैट और ये कॉल सेंटर इससे बढ़ा के इसको पेमेंट्स में और इस तरह की चीजों में लाएं। तो दे आर इन डिस्कशन इंटरनली, बट ये कब होगा वी कांट कमेंट ऑन दैट। बेसिकली देखिए लेकिन इवेंचुअली ये होना है, एक वक्त आएगा, क्योंकि अभी आप देखें इन्होंने, अगर आप देखें ना सीक्वेंस को इवेंट की, तो आज से 7-8 महीने पहले क्लाउड बेस कोई भी सर्विस आप किसी बैंक को दे ही नहीं सकते थे। जैसे ही व्हाट्सएप की पेनिट्रेशन आफ्टर कोविड बढ़ी तो इन्होंने जो है वो इसको क्लाउड बेस्ड सर्विसेज अलाउ कर दी तमाम बैंक्स को। यही वजह है कि अभी हम आपको ऑन प्रेम और क्लाउड बेस्ड दोनों ऑफर कर पा रहे हैं। अदरवाइज अगर हम सिर्फ आपको ऑन प्रेम ऑफर कर रहे होते तो ऑन प्रेम की कॉस्ट अच्छी खासी है, क्योंकि आपको अच्छी खासी मशीनें स्टोरेज के लिए और प्रोडक्शन के लिए और फिर बैकअप के लिए अरेंज करनी पड़ती, तो उसकी एक कॉस्ट पड़ती। तो अब जिस तरह का ये एटीट्यूड चल रहा है गवर्नमेंट का, तो उस हिसाब से तो हमें लग रहा है, उम्मीद ये है कि सपोर्ट मिलेगी। तो आगे व्हाट्सएप, इसके अंदर एक चीज ये है, देखिए बहुत सारे चीजें, बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो डे 1 के ऊपर ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होते।
ठीक है ना। अगर आप इन द बिगनिंग ऑफ द बिजनेस जो है ना वो इन चीजों के साथ जो है ना इंटरेक्ट कर लेते हैं और इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि किसी भी कंपेटिटर को जिसने अभी तक इंटीग्रेशन नहीं की होगी तो उसको नेक्स्ट स्टेप पे आने में टाइम लगेगा। तो इट मच बेटर कि आप जो है इनिशियल अवेलेबल ऑप्शन के साथ जो है अपने सिस्टम को इंटीग्रेट कर लें, और जब भी दूसरे फीचर्स अवेलेबल होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हम लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, तो हम जब भी व्हाट्सएप बिजनेस ऐसा चैट सर्विसेज या बॉट सर्विसेज लेके जाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो है ना, कस्टमर जो है ना अगला क्वेश्चन ये करता है, यार मुझे कॉन्टेक्ट सेंटर चाहिए व्हाट्सएप कॉल के ऊपर, सही है ना। तो टेक्निकली तो वो सॉल्यूशन हम आपको दे सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप की सर्विसेज जो है ना अभी कॉलिंग के लिए राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारी डे टू डे उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो रही होती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ। तो हमें ये पता है कि सूनर और लेटर द कॉल विल आल्सो बी अवेलेबल इंशाल्लाह इन फ्यूचर। ठीक है, would you like to continue anything further with the demo? यस, एक चीज और मुझे थोड़ी सी प्रेजेंट करनी थी। सेकंड नंबर आपको नजर आ रहा होगा +923020399168। इस नंबर के ऊपर आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको एमडीपी लिख के अगर आप मैसेज करते हैं, प्लीज सेंड अ मैसेज, एनबीपी। तो अगर आप एनबीपी लिख के इस नंबर के ऊपर मैसेज करते हैं तो आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक मेन्यू थ्रो आउट हो जाएगा कंप्लीट। तो आपको एक मैसेज थ्रू आउट हो जाएगा जिसमें वो अकाउंट ओपनिंग का कोई प्रोसेस होगा, उसके अंदर जो है वो टैक्स सर्टिफिकेट की कोई डिटेल्स होंगी। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ बेसिकली हमने डेमो के लिए हमने मेन्यू जो है ना वो प्रिपेयर किया है, और आप उस चीज को बॉट को भी आप देख सकते हैं। इट कैन बेसिकली हमारी जो प्रोडक्ट है वो कॉन्टेक्ट सेंटर की हम आपको दिखा चुके हैं, बॉट की भी सर्विसेज हमारी जो है राइट नाउ अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन जो है वो प्रोडक्ट टीम जो है ना उसके ऊपर काम कर रही है। अदरवाइज हम आपको उसका भी इंटरफेस दिखा सकते थे जिसके अंदर जो है बिजनेस जो है वो किसी भी रन टाइम के ऊपर जो है अपना बॉट का जो फ्लो है या मेन्यू जो है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, राइट नाउ हम आपको जो भी फीचर अवेलेबल देंगे व्हाट्सएप बॉट के ऊपर, वो मेन्यू जो है हम आपको डिजाइन करके देंगे, आप जो हमें सर्विसेज दे देंगे उस पर हम डेवलपमेंट करके देंगे आपको, और फिर लेटर ऑन आप जो है उस मेन्यूज को जो है वो खुद चेंज कर सकते हैं। हेलो, ठीक है, ठीक है, आपने एनबीपी लिख के मैसेज किया होगा तो इस तरह का मेन्यू उसको थ्रो आउट हो गया होगा। वेलकम टू एनबीपी व्हाट्सएप बिजनेस सर्विसेज, टू रिसीव द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन प्लीज रिप्लाई विद द ऑप्शन नंबर, दीज आर द सर्विसेज व्हिच फॉर द व्हाट्सएप एनबीपी वी आर प्रोवाइडिंग। सही है ना। आपका कोई भी बिजनेस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कार्गो के रिलेटेड हमारे पे कुछ स्टार्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो आप एक अपना मेन्यू बना के भी हमें बता सकते हैं कि 1 फॉर कार्गो इंक्वायरी, 2 फॉर प्राइसेस डिटेल्स, 3 फॉर ऑफिस लोकेशन। तो डिफरेंट तरह का आप मेन्यू जो है वो उससे ड्राइव कर सकते हैं और वो हमसे कम्युनिकेट करके आप उसके ऊपर व्हाट्सएप की बिजनेस सर्विसेज जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए आप कह रहे हैं कि यू आर प्रोवाइडिंग सिमिलर सर्विसेज टू बैंकिंग सेक्टर। मतलब ये इनबाउंड मैसेजेस आएंगे व्हिच इज गोइंग। मजाल आवाज ड्रॉप हो गई है जी, Munawwar, we're not hearing you clearly. Can you please repeat again or type in your message? Inbound messages. I think I'll type my messages. Sure. I think अच्छा इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, मजाद भी यहाँ पर अवेलेबल है और टीम भी अवेलेबल है। एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन हम जो है आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे जिसके अंदर जो है बेसिकली जो भी इंटरेस्टेड बिजनेस होंगे वो उनके लिए एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग का फॉर्म होगा जिसके अंदर वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना वो सारी पुट ऑन कर देंगे, और जो वो हमारे पास ऐसा लीड जो है ना वो रिक्वेस्ट रिसीव हो जाएगी
और फिर हम उसके बाद फर्दर कोऑर्डिनेशन सेल्स टीम जो है वो फर्दर उसके ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन कर लेगी. तो at the end of the presentation, Sidra or might be Sam will share the URL with you guys. So आप जो है उस फॉर्म को जो है ना वो सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद जो है हम वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम चले जाएंगे. ठीक है. अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास आया है. So this is inbound message which will be cost effective too. So this is the inbound message which will be cost effective too. ये कौन सा आपने पूछे? मुनव्वर साहब, ये थोड़ा एलैबोरेट करते हैं क्वेश्चन के, आप इसमें क्या? ये कह रहे हैं कि इनबाउंड मैसेज ज्यादा इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है बनिस्बत आउटबाउंड के. सर देखिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये दो प्रोडक्ट ही अलग है ना, इनबाउंड मैसेज और आउटबाउंड मैसेज. तो कॉस्ट इफेक्टिव से मतलब कि हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं हाँ ये सस्ता है, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं. जहां पर आपको आउटबाउंड मैसेज की जरूरत है वहां आपको आउटबाउंड मैसेज ही यूज करना पड़ेगा. वो असल में ये वो वाला कंपैरिजन तो मैं नहीं कह सकता कि जी इस चीज की जगह. बाहर का कहना भी यही है. देखेंगे दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है ना वो डिफरेंट है. एक कस्टमर की नीड आई है, कस्टमर ने खुद से है ना इंक्वायरी की है या खुद से डिटेल्स मांगी है, आप उसके ऊपर जो है ना कोई पुश मैसेजेस जो है ना वो आप भेज रहे हैं. और दूसरे एंड पे ये बिजनेस जो है अपने साइट को प्रमोट करने के लिए या अपनी इंटीग्रेट करने के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए जो है वो खुद से कस्टमर के साथ. अभी डिस्कशन में बिल्कुल स्ट्रेट मिसाल दे देता हूं. अभी दो लोगों ने अपना अपना बिजनेस बनाया, एक ने डिलीवरी, फूड डिलीवरी पे हमने बात की और एक हमने की कार्गो पे. फूड डिलीवरी पे आपको ये मैसेज खुद जनरेट करने पड़ेंगे. आपका जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा कि जी आपका ऑर्डर मिल गया है, तो ये आउटबाउंड है, इसको इनबाउंड हो ही नहीं सकता इसका, ठीक है. लेकिन कार्गो के केस में मैं अपना जो है वो शिपमेंट नंबर लिख के आपसे क्यूरी कर सकता हूं एज ए कस्टमर, आप उसका जवाब देंगे, यहाँ इनबाउंड हो सकता है. लेकिन वहां पर कुछ उधर भी आपको जो शिपमेंट की इंफॉर्मेशन इनिशिएट करनी पड़ेगी. योर कार्गो इज रिसीव्ड or your parcel is received, your parcel is on the way, या you will have delivery after 3 days. तो वो आउटबाउंड मैसेज आपको करना ही होगा. हाँ, क्यूरी जब करेगा कस्टमर आफ्टर 3 days के लिए मेरा स्टेटस क्या है, मुझे मिला नहीं है, that will be inbound. और ये हमारे बैकएंड से सीमलेसली एपीआई के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, राइट? बिल्कुल हो जाएगा बॉस, बिल्कुल. ठीक है, ओके. उसके लिए बेसिकली ये है कि हम आपको एक फॉर्मेट जो है ना वो प्रोवाइड कर देंगे, जिस फॉर्मेट के अंदर आप एपीआई के रिस्पॉन्सेज अगर शेयर कर देते हैं तो हम उसी चीज को सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर देंगे. तो बेसिकली एपीआई का फॉर्मेट जो है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो है फॉर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम उसको जेसन और रेस्ट एपीआईज की तरफ लेके जाते हैं, ताकि जो है तमाम बिजनेस यूनिट्स के साथ जो है एक ही फॉर्म के साथ जो है वो इंटीग्रेशन पॉसिबल हो. अदरवाइज जो है वो डिफरेंट चीज के साथ डिफरेंट फॉर्म में इंटीग्रेशन करना बी अ टाइम टेकिंग और द कॉस्ट एज वेल. That's completely understandable. One more thing, for example, मेरे कुछ कस्टमर्स होते हैं जैसे अकाउंट सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है, वो बोलेंगे कि मुझे CSV फाइल में चाहिए, एक्सेल फाइल में चाहिए, PDF में चाहिए. So if your file transfer is possible. File transfer is possible. You can send file and you can receive file. It's no problem. any type. Not necessarily. देखिए, आप जो सिंपल अपने मोबाइल से व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, वो सारी की सारी चीजें. एक्सेल फाइल, अगर आपको किसी फाइल पे डाउट है कि यार ये कम्युनिकेट करेगी या नहीं करेगी, तो जस्ट सेंड आउट दैट फाइल टू अदर यूजर. अपने मोबाइल से आप वो फाइल जो किसी और को भेज के देंगे, अगर वो जा रही है व्हाट्सएप पे तो यहाँ भी जाएगी. ठीक है, अंडरस्टैंडेबल. थैंक यू. आपका कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर ओटीपी के लिए यूज कर रहा है ये सर्विस? ओटीपी के लिए राइट नाउ अभी कोई कस्टमर यूज नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसे यूज केस आए हैं. वी आर वर्किंग फॉर कि उन्होंने अब सीआर रेस किए कि जी ओटीपी के लिए हमें बिल्कुल. इंटरनेशनली भी कोई यूज केसेस हमने देखे हैं जो लोग जो है ना वो ओटीपी के लिए ये जो सर्विसेज हैं वो यूज कर रहे हैं. लेकिन अगर आप देखें, शायद मुझे मेरी अपनी परसेप्शन ये है कि शायद एसएमएस के मुकाबले में ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा ये. ओके. और लेकिन ओटीपी के केस में जो आपने शुरू में बात की थी यूजर कंसेंट की,
सो वो पहले जरूरी है कंसेंट का भी मैं डिफाइन कर दूं आपको। कंसेंट से मुराद ये है कि अगर बैंक की उसमें आप लैंग्वेज में ले लें तो व्हाटएवर द रजिस्टर्ड नंबर बैंक हैज इन डेटाबेस, इट्स रजिस्टर्ड नंबर, वी डोंट नीड एनी कंसेंट, क्योंकि बैंक को उससे कंसेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंसेंट उसने ऑलरेडी दिया हुआ है एज ए रजिस्टर्ड नंबर, अपना दिया हुआ है कि ये मेरा रजिस्टर्ड नंबर है टू कॉन्टैक्ट। लेकिन वो चैनल उसके अंदर बैट्रिकेट हुआ है ना। अच्छा, उसमें भी सिनेरियो अब चेंज हो गया है। पहले था ये कि जी सब्सक्राइबर होना चाहिए जो सर्विसेज आप लेते हैं ना, एसएमएस अलर्ट की, और ये अब स्टेट बैंक ने मैंडेटरी कर दी है कुछ सर्विसेज कि वो बैंक को भेजनी है फ्री। पहले सब्सक्राइबर बेस इसलिए चल रहा था बैंक्स में भी कि उस पर चार्ज करता था बैंक। अब तो आपने देखा होगा कि अभी ये जो आपका जो ऐप के थ्रू या डिजिटल चैनल्स के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही हैं उसके अलर्ट बैंक को भेजने हैं फ्री। सो सिनेरियो ये कि ओटीपी यूजुअली साइन अप के वक्त होता है, सो दैट यूजर इज अबाउट टू बिकम योर कस्टमर। हाँ, तो वो अबाउट टू बिकम योर कस्टमर, तो वो आपको ऑब्वियसली जहां पर आप ये रजिस्टर कर रहे होंगे वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा ना। तो कस्टमर इज पुटिंग हिज और हर नंबर इन ऑन दैट फॉर्म, तो ये मतलब टेक्निकली इट्स ए कंसेंट। या मेक सेंस, थैंक यू। एनी क्वेश्चन गाइस? आप लोगों की साइड से कोई क्वेश्चन है तो आई थिंक मेरे ख्याल से सिद्रा जो है मैं करूंगा कि अब आप लोग सारे जो जितने भी मेरा ख्याल है जो इस पर हैं वो सब के सब इस ईमेल पे मौजूद हैं जिसपे एम3टेक और सिद्रा ने या मैंने या एम3टेक से किसी ने भी कम्युनिकेशन की है। तो पहले तो मैं कंफर्मेशन ले रहा हूँ कि तमाम स्टार्टअप जो इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं वो सब उस ईमेल पर मौजूद है। Hello. So I would like to add it here कि मुझे स्टार्टअप से जिनका इंटरेस्ट है उनका कंसेंट चाहिए होगा कि कौन विलिंग है सर्विस को यूज करने के लिए। मैं क्या चाह रहा था कि थ्रू व्हाटएवर द चैनल इज, तो अब क्योंकि ये जनरल पब्लिक मीटिंग थी, अब स्पेसिफिकली दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन कांटेक्ट M3Tech and we will facilitate accordingly, but अब आपका ईमेल है ना या अवेलेबल? जी बस इसीलिए मैंने लास्ट में बोला कि जो है ना मरजान जो है आप लोगों के साथ एक URL शेयर करेंगी, उस URL के ऊपर आप अपनी बिजनेस डिटेल, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस वगैरह जो है वो सबमिट कर देंगे और हमारे पास जो है ना ऐसा लीड या ये पूछ रहा हूँ कि हम क्या डिस्कशन होगी, क्योंकि मैं ये पूछ रहा था कि अगर ईमेल पर हैं तो you all guys have the email addresses of M3Tech like Waqar Naseem, Sidra Ikram, business side से sign the value. No, I don't think all of the startups in the same email. Startups को हम separately अलग से email भेजते हैं। तो फिर इसका दूसरा तरीका मैं क्लियर कर देता हूँ। मरजान is the medium, ठीक है। मरजान आप इस डेटा को कलेक्ट करें अपने एंड पे और हमें थ्रू करती जाए जो आपको मुनासिब लगे। आसानी कर देती हूँ। मरजान ये जो ईमेल जो था जो साइम की हमारी बात हुई थी उसमें ये लोग लूपिन थे या और इनकी साइम की टीम सारी थी उसमें? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। ये 3 लोग हैं अभी M3Tech से, जिनमें से वकार और सिद्रा they look after the business. I'll make it easier for you. कस्टमर डीलिंग या नहीं कर रहे हो? अच्छा, मैं या कंफ्यूजन ये थी कि हम लोगों ने तो जो मरजान मेरा हम लोगों का जो शुरू हुआ था एक ग्रुप बनाया हुआ था, तो वो तो साइम से एक इनिशियल बात से शुरू हुआ था ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। अस्सलाम वालेकुम असफर भाई। जी कैसे हैं भाई? वकार नसीम बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। कैसे हैं वकार? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। जी बिल्कुल याद। तो असल में मैं बार-बार कह रहा हूँ दोबारा नाम अच्छा, असल में हम तीनों एक साथ बैठे हुए हैं तो हमने 2 से ऑफ किया है। हाँ, वो इको आती है। नहीं बस ठीक ठाक। वकार भाई मैं सिर्फ कह रहा था कि स्टार्टअप्स को हमारी कन्वर्सेशन नहीं पता, मरजान भी शायद यही बता रही है। आई थिंक तो मरजान इज द राइट पर्सन। मरजान कम्युनिकेट कर देंगी स्टार्टअप्स को, वो ज्यादा फिर अच्छी फैसिलिटेशन रहेगी। ठीक है, कम्युनिकेट करेंगी आप बिजनेस साइड पर सिद्रा को, मुझे और साइन को। असफर भाई, you have my number. Marjan, you have also my number.
Yeah, तो वो I have. आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, The startups would, I'm sure इस सेशन के बाद वो खुद अप्रोच कर लेंगे, जो इंटरेस्टेड हुए वो बता देंगे कि we would like to trial period for 3 months है ना, so 90 days। उसके बाद फिर जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स हुए वो आप फॉरवर्ड कर, आई थिंक आप ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुके हैं, वो मैं स्टार्टअप्स को भेज चुकी हूँ, बट दे wanted to have a clarity, तो इसलिए ये सेशन करवाया हमने। I'll get back to you with those startups that are interested to use your service। फिर उसके बाद you are welcome। उसके बाद बेशक आप इनके साथ डायरेक्ट होकर जो भी कम्युनिकेशन वो करना चाहते हैं। लेकिन मर्जान मैं आपको जो बताऊं, the way of MTech is the point from we initiate business, तो हम उस पॉइंट से आगे जाते नहीं, ये हमारा तरीका नहीं है। ठीक है, और इधर तो अफसर भाई बैठे हुए हैं, तो अफसर भाई तो फिर मतलब बहुत मसला हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, ओके। ये वकार नसीम को जवाब देना पड़ेगा अफसर भाई को, तो अफसर भाई को जवाब दे नहीं सकता मैं, तो क्या करूं फिर, अब जो कहेंगे वैसे कर लेंगे। ठीक है, असफर भाई और भी कुछ कह रहे हैं। तो जो बोले वो कर लेंगे, हमको मसला नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड लक, थैंक यू। And